So today will be lecture number 1 for standard 12th, chapter number 8, topic electrostatics. Yeah, so you can download it easily from Google. You'll get the entire PDF itself. And you just have to write 12th textbook and there it will be. So if you want to buy it, you can buy it as well, whatever suits you best, whether you like hard copy or so and so. Okay. So let's start off. Are you all ready? You have a book, pen. We're starting with the derivation right away today. So because the basic of electrostatic is already done, that's 11th standard electrostatics is the base for this chapter. So let's start off. So the introduction part of this is already done in 11th standard. We already know what is Gauss's law, right? You're already aware of what is Gauss's law. So Gauss's law is nothing but, if you remember the equation, it was the electric flux that is coming out of a closed surface depends upon how many charges are enclosed by that surface. This was the formula for Gauss's law, right? ये Gauss's law का formula था. ये बहुत ही important formula है. And it is very, very important क्योंकि Gauss कहता है कि आप जो surface ले रहे हैं उसके अंदर कितने charges enclosed हैं. और अगर आपको याद है कि जो सरफेस हम लेते हैं उस सरफेस का नाम था गॉसियन सरफेस, याद है उसका नाम गॉसियन सरफेस था और वो एक प्योरली इमेजिनरी सरफेस है. So let's start off by the diagram, and the heading is given here. We are going to do the first derivation for electric field intensity. मतलब हमें electric field ढूंढना है due to a uniformly charged spherical shell और hollow sphere. तो ये हमारा hollow या आप solid sphere समझ के इसको आप फटाक से draw करें. Please draw this diagram. This is nothing but the actual sphere. I'll just color it. ये आपका actual sphere है. And उसका radius capital R है. So this is the sphere that is under consideration. ये हम लेने वाले हैं. Yeah. सो ये हमारा स्फीयर है और उसके चारों तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका गॉसियन सरफेस. सो प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम क्विकली. आई विल वेट फॉर यू. प्लीज क्विकली ड्रॉ एंड देन वी स्टार्ट ऑफ विद द डेरिवेशन. Please tell me when it is done. Yes, I'll be explaining. I'll be drawing it again, Abhishek, in my own way. So I'm just, so that you already have a diagram, then it will be better to understand.
Done everybody? Okay. हेडिंग लिख दिया आपने? राइट इट एज एप्लीकेशन नंबर 1. गॉसेस लॉ का पहला एप्लीकेशन है ये. मतलब गॉसेस लॉ को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने वाले हैं, और क्या करने वाले हैं अभी मैं समझाती हूँ. हो गया सबका? डन एवरीबडी? सो आई कैन सी रिद्धि, भावना, रामदूत. Okay, so I'm starting off with it. So basically हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे. Let us take a look at what we're going to exactly do. ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है. अब इस सॉलिड स्फीयर में, सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल R है. इसका सेंटर जो है O है, और ये जो स्फीयर है इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. और हमें ढूंढना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, राइट. हमें ढूंढना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉइंट पर. तो उस पॉइंट का नाम हमने रख दिया P. ओके, वी वांट टू फाइंड हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर. याद है हमने एक ग्राफ किया था कुछ ऐसे, आई डोंट नो वेदर यू रिमेम्बर. ऐसा था और फिर ऐसा था, और मैंने आपको समझाया भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं होगी, बाहर होगी, बट वो कैसी होगी, थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है. अगर आपको ये वाला ग्राफ याद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे हम इस स्फीयर के बाहर की तरफ जाते हैं वो कम कम होता जाता है. So let us see how to find out what is the electric field at this point. Yes, very good Nusrat. It is maximum at the surface. ये हमने पढ़ा था उस ग्राफ से. तो ये स्मॉल r है अपना, और ये हमारा कैपिटल R, right? Small r is the distance from the center to the point. Small r is the distance from the center to the point जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है. तो हमारा काम क्या है? हमारा ये काम है कि कोई भी पॉइंट देते हैं, मैंने अगर सरफेस पे दिया, बाहर दिया, अंदर दिया स्फीयर के, तो गॉसेस लॉ कहता है कि मैं आपको निकाल के बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है, बट वी हैव टू यूज गॉसेस लॉ. यस, हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकाल रहे हैं, बट यूजिंग गॉसेस लॉ. अब हम क्या करते हैं, एक कंपास लेते हैं, और ये वाला जो स्मॉल r का डिस्टेंस है वो कंपास पे ले लेते हैं, और यहां से हम ड्रॉ करते हैं हमारा गॉसियन सरफेस. यहां से हम ड्रॉ करते हैं हमारा गॉसियन सरफेस. ये हमारा गॉसियन सरफेस है, जिसको मैं नाम दे रही हूँ गॉसियन स्फीयर. चलेगा? क्या वो रियल का स्फीयर है? क्या गॉसियन जो है वो रियल का स्फीयर है? नो, वो प्योरली कैसा है? इमेजिनरी. पर हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ये P यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो? डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, राइट, फ्रॉम द सेंटर. डिस्टेंस उसका सेम ही रहेगा फ्रॉम द सेंटर. तो P पॉइंट हम कहीं पर भी ले सकते हैं ऑन द सर्कम्फरेंस ऑफ दिस गॉसियन स्फीयर. हम पॉइंट P को कहीं पर भी ले सकते हैं, बट हमने ये पॉइंट चुना है. समझ में आ रहा है? अगर पॉइंट P कहीं पर भी होगा इस गॉसियन स्फीयर के अराउंड तो कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू हैव ड्रॉन हियर. ये पॉइंट यहाँ हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ पर आप उस पॉइंट को ले सकते हैं, यहाँ पर आप ले सकते हैं, आप कहीं पर भी ले लें, बट डिस्टेंस टू द सेंटर तो सेम ही रहेगा ना, बिकॉज सर्कल ही तो ड्रॉ किया. ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा. यस, आई कैन टेक इट एनीवेयर. यानी कि इसका ये मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे P पर मिलेगा वही तो हर एक पॉइंट इस गॉसियन स्फीयर के हर एक पॉइंट पर सेम ही रहेगा, राइट?
बिकॉज आर इज सेम। अब डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं तो ध्यान से सुने। मैं इसको दो नाम देती हूँ, ये मेरा स्फीयर ए है और ये मेरा स्फीयर बी है। ओके जो अंदर वाला एक्चुअल स्फीयर है वो ए है और जो बाहर वाला इमेजिनरी वाला है वो बी है। मुझे आप बताओ कि चार्ज किस पर है, चार्ज कहां पर है, ए पर या बी पर? करेक्ट, एवरीवन इज आंसरिंग परफेक्टली करेक्ट, ए पर है। अभी जब ए पर है तो हम वहां यूज करने वाले हैं सिग्मा। यू नो व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज चार्ज पर यूनिट एरिया, और यही हमारा पहला पॉइंट होगा। Can I write sigma has charge upon what is the area of the sphere? 4 pi capital R square. Can I write this? चलेगा? 4 pi capital R square. क्योंकि हमारा चार्ज किधर है, ऑन विच एरिया? ए, और ए का रेडियस क्या है? कैपिटल आर है, तो ऑब्वियसली इट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर चार्ज इज सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये यहां लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 सबको समझा है? तो हमें चार्ज कुछ फॉर्मूला मिल रहा है जो हम बाद में यूज करेंगे। Q in terms of sigma, that is sigma into 4 pi r square, जो हमें यहां लगेगा। सेकेंड पॉइंट जो हमें याद रखना है यहाँ पे is electric flux. What is electric flux? Electric flux is Q upon epsilon naught. Do you agree? Electric flux is Q upon epsilon naught. So ये हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला आ गया जो हम यूज करने वाले हैं। What is this? This is Gauss's law. तो पहला पॉइंट हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी पर है। सरफेस चार्ज डेंसिटी से हम उसको लेके आए, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और दूसरा फॉर्मूला हमारा गॉसेस लॉ है। ओके, कैन यू राइट पॉइंट नंबर 1 and 2 प्लीज? प्लीज राइट पॉइंट नंबर 1 and 2. Is it done? Done? Okay. या चलेगा। मैं अपने एग्जाम्पल के हिसाब से बी और ए बता रही हूँ आपको समझने के लिए। आप उसको एस लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। गॉसियन सरफेस लिखे, गॉसियन स्फीयर लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इट्स द सेम थिंग। गॉसियन सरफेस
Gaussian sphere. So I just wanted to take it as ये अपना बीच वाला जो है वो solid sphere है, आपके समझने के लिए बताया मैंने वो, ठीक है। ये हमारा जो है ये हमारा सॉलिड स्फीयर है और जो सराउंडिंग है वो इमेजिनरी है, जिसको हम गॉसियन स्फीयर बोलेंगे, जिसको हम गॉसियन स्फीयर बोलेंगे। ओके, तो Q is equal to sigma 4 pi r square and Gauss's law is Q upon epsilon naught. हो गया? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट। रेडी? थर्ड पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। तो हमने क्या किया था, हमने एक स्फीयर लिया है जिसके ऊपर चार्ज है, जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट यूज किया है, यहाँ पे कैपिटल आर है और हमारा ये था कि हम इस पॉइंट पी पर ढूंढे। तो यहाँ से यहाँ स्मॉल आर लिया हमने और हमने एक दूसरी स्फीयर बनाई जिसका नाम हमने रखा ए, और ये हमारा सॉरी उल्टा, ये हमारा ए था और ये हमारा बी था, इमेजिनरी बनाई, और ये हमारा पॉइंट पी था, ये डिस्टेंस आर था। अब हम क्या करने वाले हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ई है, पी है ना, उसको हम एनक्लोज कर देंगे, कवर इट अप। एक छोटा सा एरिया कंसिडर करेंगे जिसका नाम रखेंगे डीएस बार। क्या रखेंगे? डीएस। डीएस, एस आपने अभी देखा रहेगा आपके ओरिजिनल डायग्राम में, पूरा सरफेस एस है, छोटा सा सरफेस लेंगे तो डीएस है। गॉट इट? और व्हाट विल बी, अगर मैंने ये एरिया लिया, ये 3 डायमेंशनल है, स्फीयर है, तो अगर मैंने छोटा सा हिस्सा उसमें से लिया है तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये मेरा डीएस बार है, एरिया वेक्टर। क्योंकि वो सरफेस, यू अंडरस्टैंड, कोई भी सरफेस आप ले सकते हैं, तो हमने वो पी को सराउंड करके एक छोटा सा सरफेस लिया और हमने उससे नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ की है। याद है ना, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट। तो ये हमारा एरिया वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में क्या मैं बोल सकती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप इसको पहचानते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे हर जगह पे ऐसे स्प्रेड हो रहा है, ऐसे 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 जा रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में आपका डीएस बार है, राइट? सो पॉइंट नंबर 3 ऐसा है, पॉइंट नंबर 3 ऐसा है कि आई एम गोइंग टू टेक ई बार डॉट ds bar, which is nothing but E ds cos theta. थीटा हमारा क्या है? 0, cos 0 क्या है? 1. सो क्या हम बोल सकते हैं दैट दिस इज E इंटू ds, क्योंकि थीटा हमारा 0 है, हमारा ई बार और हमारा ds बार सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम उसको नाम दे रहे हैं ई ds। इज इट ओके एवरीबॉडी? सो हम उसका नाम क्या दे रहे हैं? वी आर गोइंग टू कीप इट एज ईडीएस। ईडीएस बिकॉज हमारा जो थीटा है विच इज एंगल बिटवीन ई बार एंड डीएस बार, क्या हो गया उसको, वो जो है वो 1 हो गया। एनी डाउट हियर? तो हम किसकी तरफ जा रहे हैं? हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई बार डॉट डीएस बार, मतलब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ ही जा रहे हैं। Any doubts still here? Anybody? राम, आई थिंक यू फॉरगॉट, जो स्प्रेडिंग होता है मैंने बताया था ना, डॉट और क्रॉस का मैथमेटिक्स। नहीं, फॉर्मूला है ना, क्या तुम लोग भूल गए क्या? ऐसा क्या सवाल कर रहे हो यार?
What is the formula for electric flux? Electric flux का क्या formula है? I think you all forgot. The formula is E cos theta. तो यही फॉर्मूला है ना, हम उसी का बेस यूज कर रहे हैं. 12th स्टैंडर्ड में 11th का ही बेस यूज करेंगे ना, कुछ नया इंट्रोड्यूस कुछ भी नहीं कर रहे. पॉइंट नंबर 4, हमें ये इंटरेस्ट नहीं है कि दैट मीन्स व्हाट वी हैव जस्ट फाउंड दिस ईडीएस और व्हाटएवर यू कॉल, दिस इज नथिंग बट द फ्लक्स. हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड is coming out from the small surface ds. So what's the flux? See, pay attention because all this is from 11th standard. How much flux is coming through area? How much flux is coming through area ds? कितना फ्लक्स इसमें से निकल रहा है? ये चार्ज इधर है तो फ्लक्स तो ऑब्वियसली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेगा ही. सो कितना फ्लक्स निकल रहा है? सो दैट इज छोटा एरिया है, इसलिए हम छोटा फ्लक्स डालेंगे. पूरा फाई नहीं लिखते क्योंकि हम छोटे एरिया की बात कर रहे हैं. देयरफॉर दिस इज इक्वल टू ईडीएस. आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, आई थिंक लेक्चर नंबर 12 या 13 में हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ है पूरा. हमने आपको प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल, प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर, ये सब समझाया था. ये cos थीटा. I really remember giving you all the 3 conditions, though it was not part of your 11th standard. वो 12th standard का हिस्सा था, फिर भी मैंने आपको 11th में सिखा दिया है उसको. So 12th will be a little easier. So हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स है, what is the flux through the area ds, तो हमारा आंसर होगा eds, क्योंकि cos थीटा हमारा 1 हो गया. अगर मुझे, अभी मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, लास्ट बैच ने तो बराबर आंसर किया. व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इफ आई वांट टू फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कितना ये पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर से निकल रहा है. यू नो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ गॉसियन ना, कि एक आदमी यहाँ खड़ा होता है, वो अंदर झांक के देखेगा तो उसको चार्ज दिखना चाहिए. अगर उसको चार्ज दिखा तो हम बोलेंगे पी पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है. इट इज एज सिंपल एज दैट. जो भी गॉसियन सरफेस पे खड़ा होके अंदर देखेगा, बिकॉज क्या है, अगर स्टेटमेंट याद है आपको गॉसेस थ्योरम का, इट सेज द रीजन एनक्लोजिंग अ चार्ज. वेरी गुड महक, सौरभ. सो सौरभ सिंह, महक गुप्ता ने आंसर किया है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कोई भी ये जो सरफेस है, ये जो पूरा बड़ा वाला गॉसियन सरफेस है, इसका अगर हमें पूरा कितना फ्लक्स इसके अंदर से पूरी तरीके से आ रहा है, तो हमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा. तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होने वाला है? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट ds बार. क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट ds बार. ये हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? The total electric flux is going to be closed integral of E bar dot ds bar. इसका मतलब है, दिस इज ऑब्वियसली, हमने ऑलरेडी cos थीटा का आपको बताया कि 1 हो गया है यहाँ पे. सो दिस विल बिकम EDS. ये हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. अब आप मुझे बताओ, थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कोई भी पॉइंट आप ले, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होने वाला है? सेम, क्योंकि इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर एट स्मॉल r. इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम है, तो E को बाहर निकालो. क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds बताओ. कोई मुझे बता सकता है कि अगर ये छोटा सा ds है, देखो राइट साइड में डायग्राम देखो, ये छोटा सा ds है. व्हाट इज ds प्लस ds प्लस ds प्लस ds प्लस ds प्लस ds प्लस, मतलब पूरा, हर जगह पे आप ds 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 ले लेते हैं, तो ये पूरा कितना होता है? पूरा कितना होता है? हम स्फीयर की बात कर रहे हैं. 4 पाई विच आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर. 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर. यस, स्मॉल आर स्क्वायर. वेरी गुड. इसका ये मतलब है दिस बिकम्स E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5. यहां तक सबको समझा है? यहां तक सबको समझा है?
Point number 6. According to Gauss's theorem, according to, क्योंकि ये application of Gauss's theorem है, आपको कहीं ना कहीं इसको यूज करना पड़ेगा. According to Gauss's theorem, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कौन से पॉइंट पे है, फ्लक्स क्या है, फॉर्मूला फ्लक्स का. पॉइंट नंबर 2, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स. फॉर्मूला फॉर फ्लक्स इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो जहां जहां एप्सिलॉन है वहां डालने वाली हूं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट is equal to E into 4 pi r square. So therefore electric field is Q upon 4 pi epsilon naught r square. ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये तो आपको पहले ही पता था, आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फॉर्मूला है. So the electric field around a sphere is given by E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught r square. जो हमने 11th में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square. बट यहाँ पर हमने एक टॉपिक इंट्रोड्यूस की थी आपसे, क्या था वो, सिग्मा के टर्म्स पे चार्ज लिखा था. चार्ज का क्या है फॉर्मूला, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर. दिख रहा है यहाँ पे, सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर. इसको लेके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. हमारा पॉइंट बाहर है, मतलब हम आउटसाइड पॉइंट की बात करें. द पॉइंट P इज आउटसाइड द स्फीयर. सो दिस इज सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर. दिस इज फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 जो आपने ऑलरेडी लिखा रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर. तो यहाँ क्या होने वाला है, 4 पाई कैंसिल होने वाला है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनी पॉइंट, फॉर्मूला क्या है आउटसाइड का. इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर इज गिवन बाय सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर. ये आपका फॉर्मूला है. आपको समझा, ये 4 पाई कैंसिल हो गया और आपको सिग्मा कैपिटल R ऊपर रहेगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर नीचे मिला है. ये कौन से पॉइंट पे मिला है, बाहर. अगर पॉइंट बाहर है तो यही आपका फॉर्मूला है. इज इट क्लियर एवरीबॉडी, एनी डाउट हियर. अगर पॉइंट बाहर है तो यही अपना फॉर्मूला हमें सारे एग्जाम में वगैरह यूज करना है. So this is two formulas. Either you can use this formula, that is this is formula number 1, or you can use this formula depending on what data is given. अगर सिग्मा दिया नहीं है, सिर्फ चार्ज दिया है, तो आप E को यूज करें. अगर उन्होंने रेडियस दे दिया है, एक्चुअल जो स्फीयर है दैट इज ए स्फीयर, याद है ना, अपने पास दो स्फीयर है, एक ए है दूसरा अपना बी है. तो अगर ए जो स्फीयर है उसका उन्होंने कैपिटल R दे दिया है तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं. Okay, so where did we stop writing? I think you've written first 2 points. Please write point number 3, 4 and 5. Please write the points 3, 4 and 5. And if you have any doubt, please tell me.
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है वो रिया, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसी महीने में हुई थी ये पार्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एमईसी, सेमीकंडक्टर्स, ये सब चैप्टर्स रिपीट, मतलब इन द सेंस एक्सटेंशन है, these chapters are extension, तो previous भूल ही नहीं सकते. Exams are based on both 11th and 12th. Yes, continuation में है, complete continuation में है. तो आपको 11th भी रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो 12th पूरा बाउंसर जाएगा. मैं अगर आपने नोट्स लिया है तो बेटर होगा. That if you have taken down regular notes, then I don't think it should be difficult to revise. Because अभी वापस वो सारे lectures सुनना तो possible नहीं है, right? Can I move to the next slide? Have you all finished this one? Yes, okay. Next slide. Government textbook, please. You can use NCERT, but at least for these derivations, both are actually almost same derivations. So whatever suits you. Because ultimately आपको फिर theory paper तो लिखना ही है ना, वो तो textbook based ही होगा. Please tell me when it is done. सियान आज पहला लेक्चर है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th स्टैंडर्ड का आज का पहला लेक्चर है. Is it completed? Please take this down. Therefore, outside का formula आप clearly लिखिए. Outside का formula आप लिख दे. Done? Okay. अब हमने ढूंढ लिया है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल. ये शेल हो सकता है, ये स्फीयर हो सकता है, ये हॉलो सरफेस हो सकता है. इन सारे केसेस में हमने ढूंढ लिया कि अगर पॉइंट बाहर है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए. सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारा पॉइंट ऑन द सरफेस है, यानी कि अभी हमने क्या देखा है कि ये हमारा शेल है और ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज शेल है, और यहाँ पे हम रेडियस
यहां से यहां कैपिटल आर ले रहे हैं। अगर सपोज हमने पॉइंट यहां लिया था तो हमने इसको ड्रॉ किया, यहां से हमने सर्कल ड्रॉ किया जिसका नाम हमने गॉसियन स्फीयर रखा या गॉसियन सरफेस रखा। अब आप मुझे बताएं कि अगर ये पॉइंट P उठाकर मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, यहां शिफ्ट कर दिया, तो व्हाट इज द कंडीशन? वो हमारा केस 1 होगा। क्या कंडीशन होगा? क्या कंडीशन होगा? वेरी गुड, महक हैज ऑलरेडी आंसर्ड। पॉइंट P को अगर आप बाहर से उठाकर सरफेस पे रख दे तो कैन आई से दैट इज इफ पॉइंट P lies on the surface, on the surface, if the point P lies on the surface of a charged sphere, of a charged sphere, can I say of a charged sphere, can I say small r is becoming equal to capital R? अगर पॉइंट को उठाकर बाहर से मैंने सरफेस तक लाया तो कैन आई से दैट स्मॉल आर छोटा बन रहा है और कैपिटल आर के बराबर बन रहा है, करेक्ट? अगर ऐसा हुआ देन व्हाट हैपेंस टू दिस फॉर्मूला? जो आपको फॉर्मूला मिला है उसमें क्या हो जाएगा? आपका फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल रहा है आपको? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर हम किसी मीडियम में रखते तो हम इसको सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट लिखते। क्योंकि हमने ये स्फीयर को एयर में रखा हुआ है तो हमारा K1 है, इसकी वजह से E is सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। E is सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये कब यूज करने का? जब वो किसी मीडियम में रखा हुआ है जिसका K का वैल्यू आपको पता है। ये कब यूज करने का? फॉर एयर और वैक्यूम, वो तो हर जगह पे वैसे ही है। अगर हम सिर्फ एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं तो आपको समझाया गया था K वहां पर है पर छुपा हुआ है। So therefore the electric field is maximum at the surface and the formula is sigma upon epsilon naught. 11th में क्या पढ़ा था कि मैक्सिमम है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैक्सिमम तो है बट फॉर्मूला क्या है उसके लिए? सो व्हाट्स द फॉर्मूला? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी का ये क्या है, यूनिट क्या है? What is the unit of surface charge density? What is the unit of surface charge density? Unit क्या है surface charge density का? कोई बता सकता है यूनिट क्या है? Yeah, Karthik has answered. Himangani has answered. It is coulomb per meter square. Do you all agree? हमने किया था ये ना, लैम्बडा किया था, सिग्मा किया था, रो किया था। तो जब हम सरफेस की बात कर रहे हैं यहाँ इट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, केस 2। केस 2 में if point P lies inside the charge sphere, क्या इस पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? वैसे तो हमें इसका आंसर लास्ट टाइम बताया गया है, बट अगर ये आपका स्फीयर है, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं इसको। अगर ये आपका चार्ज स्फीयर है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका रेडियस कैपिटल आर है और ये प्लस है, और अगर हमने पॉइंट P लिया हुआ है इधर
जिसका डिस्टेंस स्मॉल आर है और हमने इसको ड्रॉ किया ऐसे, दिस इज द गॉसियन सरफेस या गॉसियन स्फीयर। तो आपको क्या बोला गया था? आपको बोला था कि यहाँ पर एक आदमी रहेगा, वो अंदर झांक के देखेगा, तो क्या उसको चार्ज दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्या इसके अंदर चार्ज है? नहीं है। आपका चार्ज क्या है? 0 है। अगर आपका Q ही 0 हो गया तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा? आप फॉर्मूला देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर Q ही नहीं है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? नहीं होगा। यानी कि यहाँ का आंसर क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड। तो ये उसका प्रूफ है। जो हम आपको सिखा रहे थे वो सब थियोरेटिकल था, अंदर नहीं होगा। अंदर वैसे भी कैसे हो सकता है? हॉलो स्फीयर हो, पूरी तरीके से सॉलिड स्फीयर हो ही नहीं सकता अंदर, बराबर है कि नहीं? हाउ इट कैन बी इनसाइड? क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये इंसुलेटर्स की बात हो रही है, कहाँ चार्ज की बात हो रही है? चार्ज पार्टिकल्स तो है ही नहीं यहाँ पर। क्लियर है? सो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी 0, ऑन द सरफेस विल बी सिग्मा अपॉन, यानी कि ये तीनों आ गए यहाँ पे। ये हमारा ऑन द सरफेस है, ये हमारा ऑन द सरफेस है, सरफेस पर होगा, बाहर भी होगा। इसलिए तो ग्राफ याद है आपको, ऐसे गया था, इधर तक 0 था, इधर तक मैक्सिमम था और ऐसे रेड्यूस हो रहा था, याद है? तो हमने वो ग्राफ सिखाया था आपको, एक एमसीक्यू में वो आया था। इसको कॉपी करें इस स्लाइड को फटाक से। नहीं, आई मीन जो अभी देखो, जैसे चैट बॉक्स में कॉमन लोग हैं, मैं इन सबके नाम से पहचान जाऊंगी। अभी चेहरे से ना पहचानो, तुम सबको नाम से तो पहचानोगे ऐसा, बट बाकी लोग है कि नहीं है, कभी आंसर करो यार तुम लोग भी। ये कॉमन नाम देख के अभी मेरे को बाय हार्ट हो गया, मुझे नए नाम सीखने हैं। मेरे को ये सारे जो आंसर करते हैं, अभी मेरे को पता है कि कौन से बैच में कौन लोग हैं। वत्सल मेरे को पता है, अपनी होती रहती ना नितिन, मैं जानती हूँ इन लोग को। अभी बाकी के कहाँ है या नहीं है? नो, वो एक बड़ा क्वेश्चन है। वो वर्चुअली एब्सेंट है, फिजिकली प्रेजेंट है, पता नहीं क्या है। हो गया? अच्छा रिद्धि, आप नए हो? अच्छा, नया है वह, ओके ओके, हो गया, ओके। केस 2, गीता गुप्ता, रजा अली। नए नए नाम पढ़ने सीखने पड़ते हैं बस। Is it over? Everybody? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। दिस इज एप्लीकेशन नंबर 1 using Gauss's law. We are finding out what is the electric field inside, on and outside a solid sphere or a hollow sphere. hollow बोला, solid बोला, shell बोला, समझा? इलेक्ट्रिक फील्ड वह सब केस में आपको सेम ही होगा। Are you understanding? Okay, खुशी। Okay, okay. So she's in the second year medical. Very good. So now listen very very carefully. इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं,
समझ रहे हैं क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे, दे आर जस्ट डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम थिंग। जैसे आपके कई डिफरेंट नाम होंगे, आप यहाँ जो नाम लिखते हैं वो लोग, मम्मी आपको कुछ और बुलाती रहेगी, पापा आपको कुछ और बुलाते रहेंगे, गुस्से में और भी नाम पढ़ते रहेंगे, बट हो तो आप ही ना, आप समझ रहे हैं, बट हो तो आप ही। वैसे ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो यू शुड नॉट फील दैट इट इज समथिंग डिफरेंट, यू नो, बात तो एक ही कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। तो लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज दैट वी हैव जस्ट गॉन थ्रू। हमने क्या क्या फॉर्मूला यहाँ पढ़े हैं इस पहले डेरिवेशन में, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। पहले हमने किया है सिग्मा, विच इज Q अपॉन 4πr²। बिकॉज बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर में, तो हम हर एक टॉपिक के बाद लिखना चालू करेंगे। एप्सिलॉन इज K एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज Q upon epsilon naught. Electric flux is also E bar dot ds bar. इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, पॉइंट अगर आउटसाइड है तो इट इज आइदर Q अपॉन 4π ε0r², और इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज सिग्मा कैपिटल R², बड़े मियाँ ऊपर है, ओके मतलब बड़ा कैपिटल R ऊपर है, और ये एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। 7 अगर वो ऑन द सरफेस है, ऑन है, तो इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर वो इनसाइड है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आंसर आएगा 0, आंसर आएगा 0। तो ये फॉर्मूलाज हमने यहाँ इस पहले डेरिवेशन के 8 फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है, राइट। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, surface charge density. Capital R is radius of sphere, and small r is the distance, or let me say radius of Gaussian sphere. Chalega? Actually, it is a distance of point P from the center. I'll write it like that only. Distance of point P from center. So I'll just write it as from O. This is the list of formula that you are going to remember for sphere, electric field in and around a sphere. Please take it down quickly. Please tell me when it is done quickly. देखोगे सारे फॉर्मूला याद हो गए क्या? एक क्विक रिवीजन करते हैं इसके बाद, नहीं तो ये डेरिवेशन पे वापस नहीं आ पाएंगे। सारे डेरिवेशंस इसी लाइन में हैं। जैसे हम स्फीयर का करेंगे वैसे हम शेप को चेंज करने वाले हैं। हम एक थिन वायर मतलब सिलिंड्रिकल सिलेंडर आएगा, फिर एक थिन प्लेन शीट आएगा। तो अगर आपको याद है अपना शेप चेंज हो सकता है, शेप कैन ऑलवेज चेंज।
Is it over, everybody? Can I quickly give a revision of the derivation? हाँ, 5 और 6 में आउटसाइड ही है। प्रथम, डिपेंड्स ऑन डेटा। जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तभी आपको समझेगा। Yes, shape will change. अभी बताएंगे रसिका। Shape of the original shape can change. मतलब स्फीयर के बदले सिलेंडर हो सकता है। एक्चुअल ए की बात हो रही है, बी की नहीं। Yes, charge distribution will also change. वही तो पढ़ा था ना लास्ट टाइम, अगर आपको याद है, लैम्बडा, रो, सिग्मा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी तो अलग ही होगा ना। देखो ऐसे आने वाला है, ये एक सिलिंड्रिकल वाला आने वाला है, उसके बाद ये वाला आने वाला है। दिस इज थिन प्लेन शीट, तो ये भी आएगा अभी डेरिवेशन में। इज इट ओवर? ओके, सो यहाँ एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि डेरिवेशन को एक क्विक विजिट कर लेते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पहले एक स्फीयर लिया, उस स्फीयर के ऊपर कौन था? चार्ज था, राइट? और ये चार्ज क्या है? Q। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? कैपिटल R। फिर हम क्या ले रहे हैं? पॉइंट P बाहर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल r है। यहां से हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं? गॉसियन स्फीयर। तो ये हमारा गॉसियन स्फीयर हो गया, राइट? तो ये हमारा स्फीयर हमने नाम दे रखा है, ये हमारा ए स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज है, और ये हमारा बी है जो गॉसियन है या इमेजिनरी है। अब हम इसको शुरू कैसे कर रहे थे? फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, और चार्ज कहां पर है? छोटे, मतलब इस पर है, ए पर है। तो हमने क्या लिखा? 4πr²। तो यहां से हम Q का फॉर्मूला लेके आए, विच इज कॉल्ड एज सिग्मा इंटू 4π∨R²। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गॉसेस लॉ से डिवाइड किया। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो हमारा क्या है? गॉसेस लॉ है। दिस इज हमारा गॉसेस लॉ, विच आई कैन कॉल एज इक्वेशन नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को वापस डिफाइन किया एज ई बार डॉट ds बार। यही तो था हमारा फॉर्मूला। तो हमने इसको एनक्लोज किया एक सरफेस में। हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी और एरिया वेक्टर तो उससे परपेंडिकुलर ही होती है। तो इसको हमने ओपन किया एज ई ds cos थीटा। एग्रीड? बट हमारा थीटा क्या होता है? हमारा थीटा 0 है, हमारा cos 0 क्या है? 1 है। तो हमने क्या लिखा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ds, राइट? पॉइंट नंबर 4, हमको छोटा इतना सरफेस नहीं, पूरा चाहिए। याद है मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब मम्मी चावल बनाती है तो क्या एक एक दाना चेक करेगी? नहीं, पहले हम छोटा सा चेक करेंगे। तो हमने छोटा का चेक किया, अभी हमें पूरा चाहिए, पूरा फ्लक्स। आप समझ रहे हैं? इसके हर जगह से निकल रहा है ना, एक ही थोड़े ना डायरेक्शन में निकल रहा है, हर डायरेक्शन में निकल रहा है, हर डायरेक्शन। तो पूरा फ्लक्स कितना निकल रहा है? हमें वैसे पता तो है कि पूरा फ्लक्स कितना निकलता है, जितना चार्ज होगा उतना फ्लक्स निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जितना चार्ज होगा उतना फ्लक्स निकलेगा। तो अगर किसी ने पूछा, हमने एक MCQ क्वेश्चन भी किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करती है? वो अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस या गॉसियन स्फीयर के अंदर जितना चार्ज है उतना ही बाहर आएगा। याद है एक एनिमेशन किया था हमने, यहाँ पे एक चार्ज बोला था, यहाँ पे चार्ज बोला था, एक चार्ज बाहर था। तो हम जो अंदर है उसी को कंसिडर करते हैं फ्लक्स में, बाहर वाले को कंसिडर करते ही नहीं है बच्चा। समझ रहे? तो देयरफॉर यहाँ पर हमने फिर ऐसे लिखा, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिखा हमने? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट ds बार। क्योंकि ये सिर्फ छोटे के लिए है, दिस इज ओनली फॉर स्मॉल, इसलिए आप d5 भी लिख सकते हैं इसको।
छोटे के लिए है। अब मैं टोटल ले रही हूं तो दिस विल बिकम क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, बिकॉज कॉस थीटा वैसे भी 1 हो गया। फिर हमने क्या किया, ई को बाहर ले लिया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएस लिया। दिस इंटीग्रेशन हम किसका, डीएस कहां पर है, गॉसियन में, तो यहां पर हमने लिया 4 पाई आर स्क्वायर, और हमारा फ्लक्स क्या था, फ्रॉम टू आई कैन से माई फ्लक्स इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला फॉर्मूला मिला, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब क्या हो गया, Q इक्वेशन नंबर 1 से हमने सब्सटीट्यूट किया, तो ये हो गया सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का आउटसाइड क्या मिल रहा है, सिग्मा आर स्क्वायर, मतलब बड़ा आर ऊपर है, अपन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूला आ गए, 2 फॉर्मूलाज। सो यहाँ पर एक ऐसा फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मूला है जो आपके बुक में आपने ऑलरेडी लिखा है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अगर हमारा पॉइंट हम बाहर से उठाकर अंदर ऑन दिस सरफेस रखते हैं, तो हम कैपिटल आर को स्मॉल आर से इक्वल करते हैं। कैपिटल आर को हम स्मॉल आर से इक्वल करते हैं, तो ये हमारा कहाँ है, आउटसाइड। ये हमारा कहाँ है, आउटसाइड। अगर ऑन है तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ऑन, हमारा कैपिटल आर बिकम्स इक्वल टू स्मॉल आर ऑन द सरफेस, the electric field becomes sigma upon epsilon naught. Sigma upon epsilon naught is the formula for the maximum electric field which is observed at the surface of the charged sphere. याद रहेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर किसी ने पूछा सिग्मा क्या है, क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। आप समझ रहे सिग्मा क्या है, इट इज क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और फिर हमें इनसाइड देखना था, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो नहीं होती, क्योंकि ये आपने तो अभी काफी पढ़ लिया है, आपने सेमीकंडक्टर भी पढ़ लिया है, कंडक्टर भी पढ़ लिया है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो मटेरियल है, यस यस, स्मॉल आर बिकम्स इक्वल टू कैपिटल आर इन द 6th पॉइंट, जब हमारा पॉइंट हम बाहर से शिफ्ट करके सरफेस पे लाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों है, क्योंकि मटेरियल कैसा होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक मटेरियल, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक मटेरियल, वो कैसे सब्सटेंसेस हैं, व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दे आर इंसुलेटर्स। इसलिए तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज पढ़ाया था। रबर, yes or no, are these conducting? No, and it is very difficult also because there are less number of charged particles. Glass, rubber, आपको पता है पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस, आपको बताया था पोलराइजेशन होता है, राइट। इन 11th स्टैंडर्ड हम एक ही टॉपिक जो नहीं पढ़ते हैं, जो 11th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ते और 12th में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद है हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, कुछ एमसीक्यूज किए थे, तो 12th में भर भर के हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ते हैं ज्यादा। और एक दूसरी टॉपिक जो हम 12th में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं वो है कैपेसिटर, जिसको कंडेंसर नाम भी दिया जाता है। तो बहुत ही इजी है, बट उसका जो वर्किंग है वो अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो बहुत ही इजी है कंपेयर टू दिस, और उसके ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वो करीबन 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर पे होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, चाहे आप जेडब्ल्यू दे, आप नीट दे, आप एमएचसीईटी दे। ये एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है विच इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इट इज सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, और इट इज इक्वल टू 0। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें आप मुझे बताएं, क्योंकि जो हमने आज किया वही हम आगे जाके सिलेंडर, सबका स्टेप ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी स्टेप है जहां पर आपको डिफिकल्टी फील हो रही है,
क्या यहाँ पे ऐसा कोई भी स्टेप है या कोई भी वेरिएबल है जहां पर आपको क्लियर नहीं है? आपको सिग्मा क्या है पता है, आपको कैपिटल आर क्या है पता है। थर्ड पॉइंट क्या है रसिका? थर्ड तो वही है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया है बेटा। हाउ कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डाउट आ रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने किया था ना, कि विंडो खोला तो कितना हवा आ रहा है, कप में कितना पानी गिर रहा है, तो उसको डॉट प्रोडक्ट ही बोलते हैं। और मैंने शायद आपको एग्जाम्पल भी बताया था, मैंने कहा कि जहां डॉट प्रोडक्ट होता है वहां चीजें फैलती हैं। डू यू रिमेम्बर? मैंने कहा था कि ट्रेन के डोर में से कितने लोग बाहर आते हैं, कैसे किस तरीके से बाहर आते हैं। तो डोर में हर जगह से बाहर आते हैं, हर जगह से सारे डायरेक्शन से बाहर आते हैं। बताया था कि नहीं? आपको ऐसा बताया था कि ट्रेन रुकेगी तो लोग क्या एकदम लाइन में बाहर आते हैं? हाँ। ट्रेन में चले हो तुम लोग? अभी रिसेंटली गए हो ट्रेन में, कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? धक्का बक्की हुई, फिजिक्स हुआ? वहां पूरा फिजिक्स ही चलता है। हम्म तो वहां आपको ये देखने को मिलता है कि वो हर जगह से इधर से उधर से कूद पड़ते हैं। वो क्या है? डाइवर्जन। ऐसे डाइवर्जेंस बोलते हैं उसको, डाइवर्जेंस। वो डॉट प्रोडक्ट वही है। ठीक है, गॉट इट एवरीबडी? एनी डाउट? ओके। So somebody has a doubt. Yes, capital R is equal to small r, मतलब हम पॉइंट को यहां से यहाँ लेके आ रहे हैं तो डिस्टेंस कम हो रही है ना, डिस्टेंस कम हो रही है, इसकी वजह से वो कैपिटल आर बिकम्स इक्वल टू स्मॉल आर। दैट प्रथमेश शेट्टी, इज दैट योर डाउट? प्रथम शेट्टी, ओके। हाँ जी, आपको मिल जाएगा जी। अभी भेजू? अच्छा, सारे कंफ्यूजन हो गए, ठीक है। सो दिस कम्स टू द डेरिवेशन ऑफ द स्फीयर। ओके, ये हमारा पहला जो पार्ट है, ये जो हमने आज कंप्लीट किया है, ये हमारा पहला पार्ट है। मनीष, मैंने सारे पीडीएफ्स भेज दिए हैं लेक्चर नंबर 15 तक। आप प्लीज आनंद सर या प्रशांत सर से कांटेक्ट करें। क्या? मैंने सारे पीडीएफ्स, मेरा पूरा कंप्लीट है, सारे वीडियोस और पीडीएफ्स मैंने भेजे हैं। आपको मिला नहीं है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। रसिका बोल रही है मिल गया सब। इज इट? इट मस्ट बी देयर। आप प्लीज कांटेक्ट सर, मैं बात करती हूँ। ठीक है। So this comes to the end of today's lecture. I hope you have understood today's lecture, and this was based on charge sphere because I need again time to complete long cylinder. It cannot be done at such a fast rate. So that's it from me today. Thank you so much for joining me and for taking interest in studying the most beautiful subject of all, physics.